Ladies and gentlemen, please take your seat. Especially because next half an hour going to be a little formal session. It's a cultural program, but it requires a very formal kind of attention. Because most of the things that you're going to listen, in any case, you won't understand. But, you know, if you concentrate, maybe 20-25% you may. So I'm being nasty, so forgive me for that. We are going to have Dastan Goi session here, which Ankit Chadha is going to perform. He has been learning this art of old storytelling, ancient storytelling with Mahmood Farooqi. Where is Mahmood? Is Mahmood here? And Danish? I think they're having a smoke outside. So, is he here? Oh, Danish is here. Okay, so I will leave it to Ankit to explain what is Dastan Goi. We have created a special script for this kind of audience which believes in mobile, use mobile, and thinks mobile can really change the world. And Ankit has been, and his team has been kind enough to create a special script for all of you. And I will leave it to Ankit to explain further. Thank you, Sama. Muazzaz Khatin o Hazrat, दास्तान गोई की इस महफिल में आपका खैर मकदम है। मैं इस इवेंट का हमें सबसे बेहतरीन स्लॉट मैसर हुआ है, इसलिए भी क्योंकि आई स्टैंड बिटवीन द नॉमिनीज एंड द अवार्ड्स एंड आई स्टैंड बिटवीन द डेलीगेट्स इन द डिनर। तो पर मुझे इस बात का यकीन है कि हमारी कहानी का प्लॉट इस स्लॉट पर भारी पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उसामा मंजर साहब का और डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन का, जिन्होंने ना सिर्फ दास्तान गोई में दिलचस्पी दिखाई बल्कि इसके कदरदान भी हैं। और दास्तान गोई दो फारसी लफ्ज़ों से बना है, दास्तान जिसका मतलब है कहानी और गोई जिसका मतलब है सुनाना। तो दास्तान गोई हुआ फ़न कहानियाँ सुनाने का। दास्तानें बहुत सी सुनाई गईं, जिनमें से सबसे मशहूर हुई दास्ताने अमीर हमज़ा, a story that dates back to the 9th century Persia, the protagonist of which was Amir Hamza, who was also supposedly the uncle of Prophet Muhammad. And in his adventures, he's accompanied by his friend Amar Ayyar. Then the story traveled eastwards towards India, and it reached here during the reign of Mughal Emperor Akbar, who was so fond of it that he commissioned an artistic project called Hamza Nama, under which around 1,200 folios, each a yard and a half by and a yard, were created. And these were very special miniatures in the sense, some of them you just had a look at on the screen. These were paintings in the front, and the text describing the painting was inscribed at the back. So there used to be a narrator who used to stand behind the painting as the royal audience was there in front of it, and as the story progressed, the paintings were changed, giving the audience an audio-visual experience. दास्तानें खूब सुनाई गईं, शाही किलों से नुक्कड़ चौबारों तक पहुंची। एक वक्त था जब जामा मस्जिद पर हर जुम्मे दास्तान गो इकट्ठा हुआ करते थे और दास्तानें सुनाया करते थे। मिर्ज़ा गालिब भी दास्तान गोई के रसिया थे। वो अपने घर पर दास्तान गोई की महफिलें रखा करते थे। And I remember that in one of his accounts, he also mentions that today, I have 16 caskets of wine and 6 chapters of Hamza Dastan. What else do I want from life? उन्होंने दास्तान अमीर हमज़ा के कैरेक्टर्स और बाकी चीज़ों को लेकर शेर भी लिखे, जिनमें से एक है कि दुरे मानी से मेरा सफ़ा, लका की दाढ़ी, गमे गेती से मेरा सीना, अमर की जंबील। और फिर जब ये फ़न बिल्कुल अपनी बुलंदी पर था, 1928 के करीब, द लास्ट ट्रेडिशनल दास्तान गो ऑफ इंडिया मीर बाकर अली ही पास्ड अवे, और उसके साथ हमने इस फ़न को भी खो दिया गुमनामी के अंधेरों में। थोड़े वक्त बाद हिंदुस्तान के मशहूर उर्दू स्कॉलर शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने दास्तानों पर रिसर्च करी, इसे वापस जिंदा किया और इसे परफॉर्मेंस फॉर्म में वापस रिवाइव किया मिस्टर महमूद फारूकी ने। मिस्टर महमूद फारूकी हैज़ बीन performing across the world in around many countries, and then he has done almost 400 shows, and with his partner in crime, Mr. Danish Hussain.
और मैं उनके साथ 2 साल से हूँ और साथ में थोड़ी डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा हूँ और उसके साथ दास्तान गोई में लगा रहता हूँ। तो जब थोड़े वक्त पहले हम डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की एक दूसरे इनिशिएटिव पुलिस जवान जब हमने अटेंड किया तो वहाँ पर हमने हिंदुस्तान के बंटवारे पर एक दास्तान सुनाई। वहाँ हमारी मुलाकात उसामा मंजर साहब से हुई, उन्हें बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने हमें यह ख्याल दिया कि भाई आप मोबाइल पर कुछ लिखिए। तो हमने ज़रा सोचा और फिर हमें ख्याल पसंद आया और 10 दिन के अंदर 11 दिन के अंदर हमने ये दास्तान लिखी है और तैयार की है। और दास्तान गोई और मोबाइल का भी बहुत एक करीबी रिश्ता ऐसे है कि ये दास्तानें भी हम तक ज़बानी तौर से पहुंची दास्तान गोयों से, और मोबाइल की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि सिटीजन जर्नलिज्म की शक्ल में कुछ कहानियां आप तक पहुंच रही हैं, चाहे आप तिलिस्म के किसी भी हिस्से में हों। तिलिस्म मैं एक ऐसा लफ्ज़ है जो मैं बार बार अपनी दास्तान में भी इस्तेमाल करूंगा, तो ज़रा उसे समझा दूं। सो तिलिस्म इज़ बेसिकली अ वर्ल्ड ऑफ मैजिक, वर्ल्ड वेयर देयर इज सॉर्सरी, देयर आर मैजिकल डिवाइसेस, जहां हर चीज़ जादू की है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे उर्दू लफ्ज़ में अल्फाज इस्तेमाल करूंगा और उम्मीद है कि आप लोग साउंड से या जैसे भी अगर ज़रा कंसंट्रेट करें तो उससे समझ पाएंगे। तो आज की ये जो दास्तान है, आई विल जस्ट गिव अ वेरी short gist of the story to some of our foreign guests. The story is about the mobile ecosystem in India. I'll be talking about the handset makers, I'll be talking about the carriers and operators, I'll be talking about content developers, the app developers, and most importantly, I'll be talking about the mobile user. And then I'll be talking about the mobile itself. We'll explore the voice of mobile, what does it think about itself, and what do people think about itself, and together what they can do for the world. तो दास्तान को सीधा शुरू करते हैं। बस आपसे एक दो दरख्वास्त ये हैं कि आपको कोई भी चीज़ पसंद आए तो आप तालियां मत बजाइएगा, क्योंकि उर्दू में एक कहावत है कि जिसकी ताली पिट गई उसकी इज्जत उतर गई। तो अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आए तो आप वाह वाह कह के अपनी अप्रिसिएशन मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो शुक्रिया और उम्मीद है आपको कि पसंद आएगी। थैंक यू। नाज़रीन, पेश है दास्तान जाल के खेल की और खेल के जाल की। ये दास्तान उन 1 बिलियन कठपुतलियों के नाम जिनकी उंगलियों के जरिए मोबाइल इस दुनिया की रंगत बदल रहा है, और जो अगर अपनी आई पे आ जाए तो मोबाइल की दुनिया की रंगत बदल सकते हैं। ये दास्तान यहां मौजूद उन सभी लोगों के नाम जिन्होंने मोबाइल के जरिए उन लोगों तक बुनियादी सहूलियतें पहुंचाई हैं जो इनसे महरूम थे। नाज़रीन, रवायत तो यह है कि दास्तान गोई की शुरुआत साकिनामे से की जाती है, यानी शराब पिलाने वाले की तारीफ से। मगर आज यो की दास्तान का रंग अलग है, इसलिए साकिनामा भी अलग ही पढ़ा जाएगा। तो पेश है तौकीनामा। के बल्ले बल्ले मोबाइल फोन, बल्ले बल्ले मोबाइल फोन, और तेरी महिमा जाने कौन, बल्ले बल्ले मोबाइल फोन। वो गौरैया जिसके लिए शहर बन गया है डेंजर जोन, वो नेता जो असेंबली में बैठे बैठे देखे फोन, बल्ले बल्ले मोबाइल, बल्ले बल्ले मोबाइल। एक वक्त था जब हर दोस्त हर दुश्मन का नंबर था यार। आज हाफजा है उतना जितना महंगा मेमोरी कार्ड। नहीं याद कब बिना कटे हुई थी कोई बात, ना ये पता कि कब कटा कुछ वक्त खुद के साथ। तो संभालो 2G अपना, संभालो 3G अपना, संभालो मोबाइल अपना, संभालो कैमरा अपना, संभालो रेडियो अपना। अरे अब तो इस खौफ में जीते हैं कि ना हो जाए नंबर क्लोन, बल्ले बल्ले मोबाइल, जाने कौन, बल्ले बल्ले मोबाइल। वाह वाह। तो गुलगुना कशाने यारज़े शाहिदे बयान इस तरह फरमाते हैं कि तिलिस्मे सेलुलर का बादशाह है कस्टमर, जो कष्ट से मरा जा रहा है। कहने को तो ये यूजर है, पर यूज इसे किया जा रहा है। अब इनमें से कुछ ऐसे हैं
जो हर रोज एसएमएस पर की गई लाखों रुपए के प्लॉट की पेशकश को नजरअंदाज कर देते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो हर मौसम इस पेशकश को कबूल करने के लिए एक आइडिया सोचते हैं कि कैसे बनेंगे करोड़पति, और इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए वो इतने कनेक्शंस खरीदते हैं कि उनका अपने आप से कनेक्शन टूट जाता है। इनमें से कुछ मुतवस्सत तबके के लोग भी हैं जो कि हर वक्त शहरियों के हुकूक की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या फिर इरोस होटल में बड़े बड़े इवेंट्स अटेंड करते हैं। और ये जो है ये तिलिस्मे ब्राउजिंग के शहर में मसरूफ रहते हैं, एक सर्विस से दूसरी, एक फीचर से दूसरा, एक गर्लफ्रेंड से दूसरी ट्राई करने की फिराक में सेलफोन और कॉलर ट्यून बदलते रहते हैं। मुंह पे इनके पूरी गैलेक्सी के बारे में एंग्री बर्ड्स रहते हैं, लेकिन इनकी अपनी गैलेक्सी पर सिर्फ एंग्री बर्ड्स रहते हैं। और इनमें से कुछ जो टोपी यूजर्स हैं उसकी आपको बात बताऊं कि ये टोपी यूजर्स जो है वो टोपी पहनते भी हैं और पहनाते भी। वो ऐसे कि इनके पास आम रैयत की तरह छोटे मोटे मोबाइल नहीं होते। हाज़रीन, इनके पास है किताबे सामरी। किताबे सामरी, हाज़रीन, किताबे सामरी वो टैब नुमा किताब है कि जिसे बागे सेब के खुदा ने इजाद किया। और इस किताबे सामरी के जरिए ये टोपी यूजर्स पूरे तिलिस्म का हाल दरियाफ्त करते रहते हैं, कौन कहां है, किस हाल में है, क्या कर रहा है। और इस जानकारी के बूते पर ये लोग ये तय कर लेते हैं एक उंगली के इशारे पर, जी हाँ, यूएक्स पर गौर कीजिए, एक उंगली के इशारे पर ये तय कर लेते हैं कि इन्हें किसे टोपी पहनानी है और कैसे। और जो कुछ बड़े बुजुर्ग टोपी पहनने वाले हैं वो बड़े बड़े मैदानों में ऐसी रामलीला रचते हैं कि जो हुकूमत को कुछ मिस कॉल्स के दम पर हिला के रख देती है। हाज़रीन, कुछ मिस कॉल्स के दम पर हिला के रख देती है। अब आगे की बात ये सुनिए कि सच तो यह है कि जो तिलिस्मे सेलुलर का बादशाह है वो इसका शहंशाह होते हुए भी इसी मोबाइल के तिलिस्म में खुद को कैद पाता है कि जिस पे बैठ के खुद को गम से रिहा करते थे, आज उसी तख्त पे हम गिरफ्तार हुए। हाज़रीन, तिलिस्मे सेलुलर के 3 हिस्से और मकाम। पहला हिस्सा इस तिलिस्म का है पर्दे जुल्मात, यानी अंधेरे का पर्दा, कि जहां बड़े बड़े सरदार पसे पर्दा खिलौने बनाने में मसरूफ रहते हैं। हर डिजाइन से बेहतर डिजाइन, हर फीचर की एनहांसमेंट के लिए शिद्दत से रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी सारी अकल नकल में इस्तेमाल करते हैं। किसी के अरसे की मेहनत को एक रात में अपना नाम देकर, किसी के अरसे की मेहनत को एक रात में अपना नाम देकर लोगों को स्मार्टनेस बेचने की होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन आजकल वैसे एक नया शहर इजाद किया गया है जिसका नाम है पेटेंट, जिसे बहुत जोर शोर से इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सरदारों की हाथों की सफाई देखिए कि बड़ी सफाई से लोगों के हाथों में एक खिलौना थमा देते हैं, चाहे उनको इसकी जरूरत हो या ना हो। दूसरा हिस्सा इस तिलिस्मे सेलुलर का है तिलिस्मे बातिन, यानी नजरों से छुपा हुआ तिलिस्म, कि जहां टाटा, बिरला, अंबानी वगैरह जैसे बड़े बड़े साहिर अपने शहर के दम पर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किए हुए हैं। इनकी जबरदस्ती से खरीदवा दी गई सर्विस की वजह से, जी हाँ, मैं समझ सकता हूं आप पे क्या बीती है। इनकी जबरदस्ती से खरीदवा दी गई सर्विस की वजह से लोगों के दिमाग और मोबाइल का बैलेंस कम हो रहा है, और इनके फॉल्टी बिल से हुए फॉल्टी दिल को लेकर उनकी जिंदगी का टॉक टाइम शिकायत की क्यू में खो रहा है।
बज़ाहिर बज़ाहिर ये सब एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, लेकिन पसे पर्दा इनके लिए हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। हाज़रीन, अब यही जो है इनके कारोबार का तरीका है, और ये इनके काम को सिंपल बनाता है और लोगों को सिली। वो ऐसे कि अपनी छत तक टावर लगाने को दे देती है रियाया, क्योंकि उसे रेडिएशन नहीं दिखती, उसे दिखता है किराया। वाह साहिरों, क्या खेल खिलाया। तीसरा हिस्सा इस तिलिस्म का है, तिलिस्म जाहिर, यानी नजरों के सामने का तिलिस्म, जहां कुछ बदकिस्मत तैयार रहते हैं, जो अपनी अय्यारियों के बल पर कंटेंट और एप्स तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन जहां एक तरफ पर्दे जुल्मात के सरदार इन्हें टटपूंजिया समझकर इनके मुंह तक नहीं लगते, वहीं तिलिस्म बातिन के साहिर इनका हक मार जाते हैं। हाजरीन, चलती है तो सिर्फ उन उच्च वर्ग के अय्यारों की, जिनकी कामयाब अय्यारियों के चर्चे फिरंगिस्तान और बाकी मगरबी मुल्कों से यहां तक पहुंच चुके हैं। तिलिस्म जाहिर के अय्यारों के लिए इनसे मुकाबला करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिलता। क्या सुनाऊं मैं तुमको हाले बाजार, आया था बेचने बन गया खरीदार। बाजार की हार पे अड़े हैं बाजार के सरदार। खैर, अब आपने बात सबकी सुन ही ली है, तो मोबाइल की बात क्या अनकही रह सकती है। कि बात मोबाइल की सुनिए। एक दिन का वाकया है कि एक नौजवान एक मोबाइल की दुकान में आया और दुकानदार से कहने लगा कि भाई कोई नायाब चीज है तो दिखाओ। अब उस दुकानदार ने सबसे ताजे ताजे मॉडल सामने लाकर सजा दिए। उस नौजवान ने उसमें से 2 मोबाइल खरीदे, एक को तोहफे के कागज में लपेटा और दोनों मोबाइल को अपनी जेब में रखकर आगे चला। अब अगली दोपहर की बात सुनिए कि ये दोनों मोबाइल एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। पहला मोबाइल अपनी सहेली मोबाइल से कह रहा है, क्या बताऊं बहन, मुआ कभी यहां टच करता है तो कभी वहां। सहेली मोबाइल क्या बोल रही है, अरे तू टच की बात कर रहा है, तू टच की बात कर, यहां तो मेरे पूरे के पूरे क्वर्टी को प्रेस करता रहता है, इतना प्रेस करता है कि घिस घिस के मेरा रंग पीला हो गया। क्या बताऊं, कल मेरी मालकिन की सालगिरह थी और तेरा जो आका है ना, वो और उसके साथ न जाने कितने लौंडे इस पे आए आशिक हैं। तो सब में होड़ लगी थी कि 12 बजे और बजाएं इसकी घंटी। और फिर हुआ ये कि भाई मुबारकबाद सब कुछ देनी थी उसे, लेकिन फिर जो तेरा आका है वो बड़ी शातिर चीज है, उसने 11 बजे ही नंबर घुमा दिया और ये कहने लगा कि मेरी जान तुझ पे जाती है, मेरी कॉल के पहलू में आ, दिले गमगीन को शाद कर। काश मैं तेरा मोबाइल होता तो इस वक्त तेरे होठों के कितने करीब होता। कॉल पे तो जानू कहता है, लेकिन डिस्कनेक्ट करते ही इसने तेरी मैडम को 2 गालियां सुनाई और ये शेर पढ़ा कि हम मिस्ड भी देते हैं तो पड़ जाते हैं दाम, वो कॉल भी करते हैं तो खर्चा नहीं होता। लेकिन उसके बाद सहेली मोबाइल क्या बोलती है, अरे तू क्या अपने आका की बातें सुना रहा है, मेरी मैडम की सुन कि तेरे आका का नंबर जानती हो किस नाम से सेव किया है, उसने इस नाम से सेव किया है गधा नंबर 5। और फिर दोनों एक दूसरे से बतियाने लगी कि भाई हमको सबसे ज्यादा कोफ्त तो तब होती है जब हमें दुकानों में सजा दिया जाता है, हमारी कीमत लगा दी जाती है। अरे अगर मोबाइल की कीमत जाननी है ना, तो उससे पूछो जिसने मोबाइल से पहले और उसके बाद की दोनों दुनियाएं देखी। तो सुनिए दास्तान मुल्क हिंदुस्तान कि हर कोई था किसी ना किसी वजह से परेशान। जहां एक तरफ शहर तरक्की से लरसते थे, कुछ कस्बे तरक्की को तरसते थे। जहां गांव की अपनी और गांव वालों की ना अच्छी तबीयत थी, काश उन्हें मिल जाता बिजली पानी तो गनीमत थी।
तहजीबो तमद्दुन पर छाया था खतरा, तालीम मिलती तो थी पर कतरा कतरा। अजब था पूरे जहां का माहौल, जिन्होंने भी देखा उनके बकौल। और फिर एक दिन जब हर चीज रुकी सी थी, मोबाइल के चलते चलना शुरू हुई। स्कीमें तो बहुत चली सरकारी थीं, पर अब जाके चली उनकी जानकारी थी। जहां माओं और बच्चों की हालत पस्ती में थी, वहां तक पहुंची लहर तंदुरुस्ती की थी। रुकी थी जिनकी आवाज, रुकी थी जिनकी जबान, रुकी थी जिनकी जबान, चली उनकी आवाज। और गुम थी जिनकी जबान, चले उन तक अल्फाज। टूटी सड़क को जोड़ने कोलतार चला, जवान से मिलने रोजगार चला। चली चली सपनों से मिलने बुनियाद चली, जब खेत से मिलने खाद चली। खबर दुनिया की हो आई देहाती गली, चली यहां अब के बदलाव की हवा जो चली। चली हवा के ही जरिए ये लेकर पैगाम कि तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी आगे बढ़ो, रास्ते खुले हैं तमाम। मोबाइल कहता है, मोबाइल ये कहता है कि अगर मेरी कीमत जाननी है तो जौनपुर के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले उस अनिल कुमार जैसे हजारों बच्चों से पूछो, जिन्हें अब यह फिक्र नहीं होती कि उन्हें दोपहर का खाना मिलेगा या नहीं, क्योंकि मेरी नजर उन पे रहती है। मोबाइल की कीमत जाननी है तो राजस्थान से दिल्ली आए विष्णु से पूछो, जो दिन भर मजदूरी करके जब घर वापस लौटता है तो अपने मोबाइल पर गांव के गीत सुनकर अपनी थकान मिटाता है और अपनी मिट्टी की खुशबू को पास पाता है। मोबाइल की कीमत जाननी है तो उन 62,000 किसानों से पूछो जो एसएमएस देखकर अपनी फसल के इजाफे का भरोसा पाते हैं। मोबाइल की कीमत जाननी है तो उन मां बाप से पूछो जो मेरे भरोसे, मोबाइल के भरोसे अपनी लड़की को शहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। हाजरीन, जरा सोचिए, जरा सोचिए कि अगर हम मोबाइल के जाल से खेलना शुरू कर दें तो क्या हम इस जाल में फंसते जाएंगे या इससे आजाद होंगे? सोचिए। मैंने उसको देखा है, मैंने उसको देखा है खामोश गलियों में पैदा करते एक हलचल सी। मैंने उसको देखा है खामोश गलियों में पैदा करते एक हलचल सी, बातों बातों में आगे बढ़ते एक ठोस चाल मुसलसल सी। जब वो घंटी बजाकर अपनी चुप्पी तोड़ता है, दुनिया को वो जोड़ता है। कौन है वो, कौन है वो जिसके नेटवर्क का जाल अपनी ताकत से सबको दे रहा है ताकत बेमिसाल? कौन है वो गुस्ताख, ताख तड़ाख, ताख तड़ाख, ताख तड़ाख। शुक्रिया। एक अच्छे टैलेंट हंट कंटेस्टेंट की आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप हमें एसएमएस ना करें, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वी आर दास्तान गोई आप, दैट्स आवर हैंडल। थैंक यू। That was Ankit Chadha. Thank you, Ankit. I think. Can I request for? Okay. So that was the standing ovation for Ankit Chadha for not only writing the script but delivering an extremely holistic, meaningful story about mobile. Thank you very much. Thank you very much. Ankit, please come.
That was awesome.